This conference will now be recorded. Welcome all. A very great morning. Hello, guys. Good afternoon, sir. Thank you so much. Good afternoon. Welcome. Welcome. Hope you all doing great. Yes, sir. Last session clear था. Yes, sir. या मुझे व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? मनीष. Yes, sir. Manish Raj. स्टूडेंट कम क्यों होते जा रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर क्लास भी रहता है इसीलिए. क्लास भी चल रहा है क्या आपका? क्या? Yes, sir. अच्छा, कॉलेज का क्लास चल रहा है तो उसका टाइमिंग क्या है? अभी कितने बजे लेक्चर स्टार्ट हुआ है आपका, आप लोगों का? वो सर फिक्स नहीं रहता है, कभी भी हो जाता है. ओके 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 ओके. तो अच्छा, तो यहाँ पर चैलेंज आ रहा है मतलब यार, क्योंकि एकदम से फर्स्ट डे 51 हुए, फिर सेकंड डे अराउंड 21 25, फिर 11 12, फिर आज अभी 6 इंक्लूडिंग मी. देयर इज अ नंबर ऑफ 6 इज शोइंग मी. बट अब इतना डे बाय डे अगर स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. चलो, एनीवेज, कैन वी स्टार्ट इट? Yes, sir. Okay, thank you so much. Thank you, guys. Today, our topic is regression with the support vector machine. These are also the machine learning connect, because these are the important topics which cover artificial intelligence also. Its basic is going directly to the artificial intelligence. That's why I emphasize on this topic, because if this topic is not clear, then the coming topic is very difficult to understand you. That's why in the yesterday class I show you 45 to 50 minutes practical, so that you understand it actually how we can perform our predictions, how we can predict some values without the data also. Okay, guys, now we can start it. So welcome all in the day 4. Now predictive modeling. सबने सुना है predictive modeling, but what exactly is that? I already told you many times, analytic science is totally depend on the probability, and this third name is predictive modeling, process by which a statistical modeling is repeated to best predict. Yesterday session, I predict the MPG on the basis of a single variable. Agree? What was that independent variable? It was the weight. But today, if I have the time, because today lecture is very long, it might be possible it exceed the time. If not, then I can definitely show you. If I can add on the independent variable with the weight, suppose displacement, cylinder, then what will be the best prediction in overall model performance? So we can see that in the after a few minutes, what will be the best possibility outcome, because yesterday class we only perform with the one independent variable. Now second point is that predictive modeling was developed using historical data purposely from the collected data. Yes, definitely that data, it might be a present data
as well as the historical data. I already told you in the first lecture, business intelligence is from past to present, and business analytics is from past, present, and future. So same here is also performing by the predictive modeling. Predictive modeling in any field. Now there is no foundation कि मैं इस field का हूं, then I'm not eligible to apply or go in that field. No, there will be no restriction or no bars कि आप किसी भी fields क्यों, you can easily enter it. But you have to know how to understand the data, how to perform on that particular data by using some algorithms. What are the steps, general steps? Set business goal, business data and pre-processing, EDA, again EDA coming, exploratory data analysis, develop the statistical model validation, and the evaluation model implement. Guys, business goal. Suppose in the last session, I already gave you some business goal, why my car sales is going down. What is the reason behind that? The sales vice president come in with the analytical department and told me ki, why the sales is going down. What is the reason behind that? Evenly in the coming days, coming month, coming year, we are renovate our model, create our advanced model, advanced technology with the so many facilities, all these things, but still we are going down in sales as compared to other automobiles company. So analytical department is starting to researching on that, what is the reason behind that. So after that we find out in the yesterday session that weight is the most important parameter whose weightage as compared to other input variable is very large. Now today's session we have to see that what are the other variables also impact on the mileage. Okay, then this is the business goal. Now the next point is data understand and pre-processing. What is the data understanding? Suppose I am working on the MPG, but I gave you the data set healthcare. So there is some relationship in the business goal or business objective with the data understanding? No, it not be possible, because both things are on the different track. That's why there is no correlation with the business objective and data understanding. You have to need to understand, because when you start your organization, you set your goal that what we are providing, what type of services we are providing. So you are trying to capturing that type of data, not the other type of data कि आप कर कुछ और रहे हो, डेटा कलेक्शन किसी और का कर रहे हो, तो वो that thing is never be give you a benefit or a positive result or positive output. Okay, then third point is EDA, exploratory data analysis. What is exploratory data analysis? EDA we will discuss in the next coming slide. EDA is nothing to find out all the important information into the statistical, which is known by the exploratory. किसी चीज को explore करना, data को analyze करना in the form of the statistics, in the form of the data management. ठीक है. Next, then develop the statistical model. अब statistical model means you have what algorithm you have applied over there. Applied what algorithm? Because it always be noticed that if you are on the right track, so if you are on the right track, then definitely it will be some problem you facing कि which algorithm we are using. Because आप ये मत सोचना if one algorithm is used in only in one data set. No, multiple algorithms will be used in a single data set. As you go further step by step, then you are learning. अच्छा यार, ये जो machine learning के algorithm, it also used for to find out the important parameters. Next algorithm, अच्छा, it come from the these types of pre-processing. ये मेरे डेटा को क्लीन कर रही है, ये मेरे डेटा को प्रूनिंग रिमूव कर रही है. Try to prune that. I will let you know in coming slides what are these word indicates in the algorithms or in the business scenario. These are the develop the statistical model. Next is the model validation and evaluation.
Now, what is model validation and evaluation? Model validation is always between test and training. It also known by the cross validation. You will be work on the training and apply on the test on training, training test. You will do like this. It always be ratio on 10-90% of the data division, or 20-80-70-30, but not go beyond this. अगर आप 60-40 पे चले जाओगे then it similarly behave as 50-50. guys 50-50 पे नहीं जाना हमें, ना 60-40 पे जाना हमें, मैक्स टू मैक्स 30-70 तक रखना है, 20-80 तक रखना है, 10-90 तक रखना है. डोंट नो गो उससे नीचे मत जाओ, डोंट गो बियॉन्ड दिस और बिलो दिस. ठीक है. Fit, then you are trying to evaluate, you see the goodness, you see the accuracy, how model should you explain, model implementation, each and everything after is succeedingly according to the statistical information. Then you have to apply, implement that model in the real business scenarios. That is the general approach of a machine learning, artificial intelligence. All these things you have to do. Okay, next coming slide is model building. Same thing is repeated again in the data understanding, uh, exploratory analysis, model selection, and validation, model implementation. Guys, please remember this step always, 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 so that you can understand it, what is going on. Okay. Now data. Up we are moving on step by step. What are the basic steps? That step is the headers. Now it is the sub parts of the data headers. Basic about it, understanding the dimension. I already show you then the last class by the practical understanding data dimensions. What type of what exactly shape? It is also known by the shape. कितनी rows हैं, कितनी column है, missing values, all these things, relationship, univariate profile, bivariate. I also show you the D types by the name of the D type, which is known by the another name, that is the variable type, variable relationship is a correlations also. You can also called as the variable relationship. इसका क्या relationship है, किस positive है, negative है, no correlation है. These are the three types of correlation. Then the range of this correlation is -1 to +1. Minus indicate the inversely proportional, which impacted whether it be the positive or negative, but it both are affect on the each other. Sometime it will be the negative effect, which is indirectly proportional. Sometime it positively affect, which is directly proportional. These are called the variable relationship. Because today we also discussed another important scenario for the data pre-processing or data cleaning is also coming in the part of the multicollinearity. We will discuss in this session today. Now converting the raw data. Guys, one of the most important question आता है जब अभी कोई आपका इंटरव्यू स्टार्ट करेगा. What was your approach towards solve a data problem or business problem or convert from the big data to the predictive data? तो आप ये बताओगे. First we are trying. Now I hope you understand all the question. If not, then I can repeat it again. When you ever to try to collect the data, or client side you have got the data, or you are trying to collect your own data even also, your first approach is always that you have the big data. If you have the big data, then you have to need to go from big data to predictive data, because big data have many impurities, many useless things, many useless keywords. You have to remove that, or eliminate it. So first you move from big data to predictive data. Predictive data is that data which give you a useful outputs, useful information after applying the machine learning algorithms. So you have to do this. Your first answer is that only. Okay, that's our first. I try to understand the business goal, whether the business objective is really connected to the data which are provided by the client or from the other sources, is really connected with that. If not, then I ask the
more data so that I will connect that data with the objective. Okay, first point, first two answers this. Then second, then I move to the feature selections. Feature selection, data cleaning, missing values, inconsistencies, all these things are mentioned over here. If the data is categorical, how you can find out? If the data is the categories, then definitely we will find out through the classes. The types of variables give me the answer what type of variables behavior. Okay, then the pre-processing, grouping, factorizing, sedimentations, reductions, all these things you have to tell in front of your examiner, in front of your technical person who will be take your interview. ठीक है, ये आपका आंसर समझिए, डायरेक्टली ये नहीं सर आप डेटा दो, जो भी आप लोग बोल सकते हो वो चीजें मत करना, ठीक है। डेटा के वेरिएबल्स को फोकस करना कि उनका नेमिंग से, बिकॉज वेरिएबल्स ऑलवेज टेल अस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम, मतलब पर्टिकुलर आइटम मींस पर्टिकुलर कॉलम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज ईडीए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट। यू हैव टू रीड दिस थ्रू द एनालिटिक, थ्रू योर स्टैटिस्टिक, descriptive statistics. This is the most important part also. Descriptive means data manipulating, data management, data capturation, slicing, bars, plots, all these things come into the data descriptive statistics. Descriptive statistics also notice your patterns. How's your patterns is it? If there is some patterns, then definitely you can also use the, you also find out the useful information from the patterns also. Okay, now is the hypothesis. Hypothesis is also the important part of that. Hypothesis is to whether your data is defined or data is your justified or not. Suppose मुझसे प्रतीक ने कहा कि ध्रुव, in that 300 ml bottle there is only 280 ml cold drink is filled. This means that companies try to cheating with us. उसने ये कह दिया मेरे से, तो मैंने क्या किया, ये हो गया मेरा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का फर्स्ट नेम होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मींस HN इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब ये उसने मुझसे, ये मुझे उसने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया। फिर मैं आता हूं, नहीं दिस इज नॉट ट्रू, जिसको मैं बोलूंगा ऑल्टरनेटिव और रिसर्च हाइपोथेसिस। अब मैं उसको ये रॉन्ग प्रूव करूंगा, वो पी वैल्यू भी हाइपोथेसिस है, जो मैं आज आपको रिजल्ट में शो करूंगा। गाइस प्लीज म्यूट योर माइक, ठीक है। मैं वो रिजल्ट आपको शो करूंगा और वो मैं पी वैल्यू के थ्रू जस्टिफाई करूंगा। मैंने स्टार्टिंग की बेल्ट से 5 बोतलें पिक कर ली और उनमें दिखा दिया कि ये देखो, तो मैंने उसको बोतल शो नहीं करी, उस केस में तो मैंने उसको बोतल शो करी, लेकिन यहाँ पर मॉडलिंग में मैंने उसको पी वैल्यू की फॉर्म में रिजल्ट शो किया। इफ माई पी वैल्यू इज मोर देन 0.05 देन हिज स्टेटमेंट, प्रतीक स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ H value is not, if P value is less than 0.05, then I give the evidence to the Pratik in the form of the P value. So this is the difference between the null hypothesis, alternative hypothesis. There are two types of hypothesis, null and alternative. This is a hypothesis testing. All model is be depend on this, because the output of this value is into the P form. Even the variables is also shortlisted on the value on the basis of the P value. Okay, now next point is identification of the modeling technique. Then this point is coming again. आप कौन सी एल्गोरिथम लगाने जा रहे हो उसके अंदर, ये आप ही बताओगे, ये आपकी एक्सपीरियंस, आपकी अप्रोच डिफाइन करेगी। और उससे ज्यादा अगर हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, टाइप ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आपको आउटपुट करना क्या है, कौन सा आउटपुट निकालना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। कीप रिमेंबर दिस, जब भी हम किसी डेटा सेट में वर्क करते हैं, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है। हमारा पहले मेन टारगेट डिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। अगर एक बार हम डिपेंडेंट वेरिएबल
को फाइंड आउट कर ले तो रिमेनिंग कितने भी वेरिएबल्स हो, 100 हो, मिलियंस हो, बिलियंस हो, ट्रिलियंस हो, डजंट मैटर, वो सारे इंडिपेंडेंट में ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाते हैं। यू डोंट नीड टू मेंशन ऑन दैट, केवल आपको डिपेंडेंट वेरिएबल को मेंशन करना पड़ता है, जैसे कल मैंने अपने मॉडल में मेंशन किया था एमपीजी, रेग्रेस विद वेट। ठीक है गाइस, दिस इज कॉल्ड द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग द रोड अहेड। अब ये हमारे आउटपुट्स होते हैं, जो हमारे जो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में जो आउटपुट्स आते हैं कवर करते हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल मॉडल, पैरामीटर एस्टिमेशंस, ठीक है, पैरामीटर इंटरप्रिटेशन, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ रेग्रेशन, डायग्नोस्टिक चेक, डिटेक्टिंग इन्फ्लुएंशियल ऑब्जर्वेशंस, अंडरस्टैंडिंग कैटेगरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मॉडल सिलेक्शंस टेक्निक, मॉडल वैलिडेशन, परफॉर्मिंग कंप्लीट regression analysis in Python or R. Everything should be mentioned. This is the steps. This is not the step, this is the methods. What are the values coming indicate कि डायग्नोस्टिक की कौन सी वैल्यू इंडिकेट कर रही है, गुडनेस ऑफ फिट की क्या इंडिकेट कर रही है, मॉडल में हमने एल्गोरिथम कौन सी लगाई है, ये सारी चीजें हमें वो ही बताएंगी, यही वाली जो मैंने इसमें यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ यू जो स्लाइड्स में मैंने उसको मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब यहाँ से आपका रेग्रेशन स्टार्ट होता है। रेग्रेशन तो आपका फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो गया था। अब रेग्रेशन आपको पता है, रेग्रेशन जब स्टार्ट हुआ तो 80s में स्टार्ट हुआ। जिन्होंने साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था वो नाम थे फ्रांसिस गैल्टन। अब गैल्टन ने स्टडी करी रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप किसी चीज की भी हो सकती है, बट किसी चीज का मतलब तो ये थोड़ी ना कि कोई रिलेशनशिप ही ना और हमें रिलेशनशिप बना दिया, नहीं। सपोज जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दे चुका था, इफ फादर हाइट इज रियली डिपेंड ऑन द सन, सॉरी अ सन हाइट इज रियली डिपेंड ऑन द फादर हाइट। अब इसका रिलेशनशिप इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, क्या ये बात सही है, तो इन्होंने एक मॉडल डेवलप करते, कैसे, इफ इस सन इज प्रेटी टॉल 6-7 फीट, इज नॉट नियरली टॉल एज डैड। हो सकता है डैड की हाइट 6'9" हो बट सन की हाइट 6'7" हो, 7 हो, बट दैट सन हाइट इज नियरली अबाउट his father height. So you never say that there will be no relationship. You have to confirm it. अब ये तो statement आ गया, but this is the null hypothesis. We have gave the evidence in the form of the alternative hypothesis. ठीक है, अब phenomenon regression हो गया when we are comparing what regression of father son height tends to regress or drift towards the mean average height. This is the mean average value is also regress with the son's height, father son's height. So we are creating the model between the father's height and the son's height. Okay, if these are the 2 points, we are connecting, we are draw the regression lines. The lower line, least square method. I already told you what is least square method. The least square method, if somebody asks you on which algorithm linear regression work, so your simply answer is the linear regression least square error methods, because linear least square method estimation says that regression coefficient should be choose in such a way that is minimize the sum of the square distance of the each observation. कैसे, वो ये देखो, यहाँ देखो आप, ये लाइन है, ये बाद में आता हूँ, ये लाइन है, ठीक है। अब ये मेरी बेस्ट फिटेड लाइन है। अब मैंने कैसे कह दिया बेस्ट फिटेड लाइन है, ये मुझे एरर्स बताएंगे, इस मॉडल के टोटल एरर्स होंगे। अगर वो कम है फिर से हम इसको रिग्रेस कराएंगे, फिर से देखेंगे क्या वाकई कम हो रहे हैं। अगर कम हो रहे हैं तो वो बेस्ट फिटेड लाइन होगी। अगर मैं हर पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस नापूं तो जो अपर है वो पॉजिटिव एरर है, जो डाउनवर्ड्स है वो नेगेटिव एरर है। जब मैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स को ऐड करूंगा, हो सकता है नेगेटिव पॉइंट्स मेरे पास ज्यादा हो, लेकिन मुझे ऐड तो करना है। तो अगर -7 आता है तो डिस्टेंस टोटल -7, तो वो नेगेटिव डिस्टेंस नेवर बी पॉसिबल प्रैक्टिकली। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, उसको स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 49, पॉजिटिव 49। दिस इंडिकेट्स दैट दैट्स व्हाई हिज नेम इज, द एल्गोरिथम नेम इज लीस्ट स्क्वायर एरर। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप देखो ये पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, by doing this we could take the multiple man। आगे बात यहाँ पे, we have the these are the data point is nothing, it is an observation। suppose these are the 100 points, 100 data points, 100 father side of 100 sons।
like a man who tall we expect his son to be before we even has a son. ठीक, अब वो कैसे? Our goal with linear regression is to minimize the vertical distance. What is the vertical distance? Our point from the regression line is also the vertical. The below line, below the regression line is also the vertical distance. We can sum of these all the point, whether that be the vertical distance top upward or vertical distance downwards. So in determining the best line, we are attempting to minimize the distance. Guys, again, this point is coming. Minimize the distance between all the points. वही बात आ गई. That's why no algorithm is least errors square method. Distance of all the points and their distance to our line. Distance measure हो गया. अब कैसे ये distance आएगा? There are lots of different way to minimize. कौन सा methods है वो? Sum of squared error, sum of absolute error. But all these methods have a general goal. सबका एक ही गोल है, minimize the distance. Minimize जब distance कम होगा तब error से calculate होगी. Distance error ही बताता है, जिसको हम E naught कहते हैं या फिर E hat कहते हैं या E caps कहते हैं. जैसे ये है, अब आप देखो यही डेटा पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस को ऊपर बाहर लाइन खींच दूं जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है, तो क्या हो गया? यहाँ पर आपका ये सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट हो गए, जिसको हम बेस्ट फिटेड लाइन एल्गोरिथम बोलते हैं. आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो चुका है. तो यही हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है. इफ समबडी आस्क यू, guys note these questions जो मैं बार बार आपको रिपीट करता हुआ चल रहा हूँ फ्रॉम द फर्स्ट डे. इफ समबडी आस्क यू व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द रेग्रेशन मॉडल, तो आप बताओगे द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस और न्यूमेरिक. कीप रिमेंबर दिस. पहला पॉइंट आएगा वेरिएबल टाइप. आप चाहो तो नोट कर सकते हो इसको. अगर नोट कर रहे हो तो यस लिख दो प्लीज, जिससे मुझे क्लियर हो जाए तो मैं इसको रिपीट कर सकूं एक बार. ठीक है, इसका बेसिक क्वेश्चन जो है वो यही है. वेरिएबल टाइप हो गया. द वेरिएबल टाइप मस्ट बी द न्यूमेरिक और कंटिन्यूअस. एल्गोरिथम में आ गया आपका बेस्ड ऑन द लीनियर लीस्ट स्क्वायर मेथड. ठीक है, थर्ड इसकी इक्वेशन आएगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा. ठीक है, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस एप्सिलॉन एरर्स. ठीक है, थर्ड पॉइंट आ गया यस इज सेट अप द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. ठीक है, ये आपके इसका बेसिक फीचर्स है. नाउ दीज आर द इक्वेशंस. सिंपल लीनियर रेग्रेशन गेव lives us to the name. It is a straightforward approach for predicting a quantitative response. Quantitative response means continuous or numeric, because independent variable always indicate by the symbol of y on the basis of single predictor x. X is the independent variable or output variable. ठीक है गाइस, ये इसका मेथड्स हो गए. It assumes that approximately there is a linear relationship between all these x and y. Equation क्या होती है? Y equals to beta naught plus beta 1 x. That equal sign is approximately to be represent the regression sign y onto x or y on x. अब सपोज करो मुझे सेल्स फाइंड आउट करनी है और टीवी उसका सोर्स है. टीवी के थ्रू मुझे सेल्स फाइंड आउट करना. तो क्या हुआ? बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स. वाई हो गई सेल्स फाइंड आउट करने के लिए, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल. और टीवी क्या हो गया? मेरा एक्स, क्योंकि वो मेरा इनपुट वेरिएबल है. और बीटा नॉट और बीटा वन मेरे कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गए, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ इंटरसेप्ट एंड स्लोप. ठीक है, बीटा नॉट बीटा वन हमारे कोफिशिएंट ऑफ पैरामीटर्स हो गए जो कांस्टेंट होंगे, जो हमारे आउटपुट वेरिएबल्स में शो करेंगे, आउटपुट समरी में शो करेंगे. जब मेरी प्रेडिक्टेड इक्वेशन आएगी तो वो क्या होगा? वाई नॉट प्लस बीटा वन एक्स का क्या हो जाएगा? वाई हैट इक्वल्स टू बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट इनटू स्मॉल एक्स. दिस इज द प्रेडिक्टेड इक्वेशन जो आपको प्रिडिक्शन में उनको बतानी होगी कि आपके वैल्यूज के थ्रू क्या इक्वेशन वो बन रही है. गाइज यहां तक क्लियर है अब आपको? ठीक है, जो भी हमारा हेट आएगा या बार आएगा वो आप समझ जाना हमारी एक प्रिडिक्टेड इक्वेशन पे ही हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है,
Now we move on the what is overfitting and underfitting. ठीक है, ओवरफिटिंग क्या होता है, अंडरफिटिंग क्या होता है। गाइस ये देखिए आप, ओवरफिटिंग, ऑप्टिमल और अंडरफिटिंग की फिगर आपके सामने देखिए। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, वाई मेरा किससे रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और रेस्पॉन्स वेरिएबल। नाम तीन है, काम एक है। आउटपुट, रेस्पॉन्स और डिपेंडेंट इज इक्वल्स टू वाई, सिंबल इज वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, अब आप पहला देखो, अंडरफिट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट्स दूर होते जा रहे हैं, उनकी शेप चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ठीक है, थ्रू दिस द ओवरऑल कॉस्ट इज इंक्रीजेस। ठीक है, इफ वी गो फॉर द ओवरफिटिंग में, अब आप देखो ओवरफिटिंग में मेरी जैसी शेप है वैसे ही लाइन ड्रॉ हो रही है। when we run our training algorithm on this type of data set, we allow the overall cost का मतलब क्या है, the distance, overall cost मतलब पैसे की बात नहीं कर रहे, we are not talking about money, the distance from the each point to the line become smaller with more iterations. I hope so ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। become smaller with more iterations. This is known as the overfitting. This means that the line will be fit into all the points including noisy मतलब आप समझते हो बिखरे हुए पॉइंट्स, यहाँ पर बिखरे हुए हैं, लेकिन उस लाइन ने यहाँ पर सबको कवर कर रखा है, तभी मैं इसको ओवरफिट कह रहा हूँ। आगे जो आएंगी एल्गोरिथम्स एआई में, वो ओवरफिट से भी हमको ओवर कराएंगी, कैसे वो हम कमिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे उस चीज को। बट आप ये समझ लो, ओवरफिटिंग हमारा क्या है, डिस्टेंस को, कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉइंट्स को कवर हो रहा है। बट वही जगह अंडरफिट क्या करता है, अंडरफिट कॉस्ट को बढ़ा देता है। जैसे आपकी देख ही रहे हो ओवरफिटिंग का, ओवरफिटिंग के बाद अंडरफिट देख रहे हो। इन दिस मॉडल टू लर्न द ट्रेनिंग वी डोंट वांट टू लर्न टू मच, इसमें हमें ज्यादा समझने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले में ओवरफिट में वो चीज देख चुके हैं। क्योंकि ये हमारा कॉस्ट बढ़ा रहा है, कैसे, इसमें कुछ पॉइंट्स इतने दूर जा रहे हैं जो हमारा एरर्स भी बढ़ाएंगे, एरर्स मतलब कॉस्ट भी बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो इन दिस केस नॉट लर्न इनफ फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट, इट इज अनरिलायबल प्रेडिक्शंस, आपकी ये सारी प्रेडिक्शंस फेल हो सकती हैं। ठीक है, अब आता है नीचे प्रिडिक्टर वेरिएबल। अब आप प्रिडिक्टर ऑप्टिमल मेथड्स को देखो, ऑप्टिमल मेथड में ही आपका वो पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, मतलब जितना हम मिनिमम एरर कर सकते हैं कॉस्ट को अफेक्ट, बिना कॉस्ट को अफेक्ट किए, तो ये हमारा बेस्ट फिट है ऑप्टिमल, जैसे हमने रेग्रेशन में देखा था। ठीक है, होप सो ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, अब हमारा आता है ओवरफिटिंग एंड ट्री प्रूनिंग। अब ओवरफिटिंग क्या होता है, एंड इंड्यूस ट्री में ओवरफिट द ट्रेनिंग डेटा। कैसे, टू मैनी ब्रांचेस, some may reflect anomalies due to the noise or outliers। गाइस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे सपोज करो मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल, आप रोज उसको देखते हो, आप एक पेड़ को देखते हो, या आपके घर में कोई गार्डन है, एक माली आता है, गार्डनर आता है, उसकी क्लीनिंग करता है। क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है जो झाड़, जो टहनियां, जो ब्रांचेस उसकी बढ़ रही हैं, वो एक उसकी शेप बिगाड़ रही है, जिसको हम ओवरफिटिंग या नॉइजी बोल रहे हैं और आउटलायर्स बोल रहे हैं। आउटलायर्स मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, नॉइजी इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ आउटलायर, जो नॉइज क्रिएट नहीं कर रहा है, आवाज नहीं, जो एरर्स को क्रिएट कर रहा है, जो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ द एरर्स। ठीक है, तो टू मैनी ब्रांचेस, गाय तो वो क्या करेगा, माली उसको शेप दे देगा, उसकी आउटर ब्रांचेस जो अलग से एक्सटेंड होती जा रही है, जिसकी हाइट बढ़ती जा रही है, तो क्या करेगा, उसको उसी हाइट, उसी शेप पे ला देगा, जिससे हमारा होल ट्री शेप्ड है। तो वो ऐसे ही करेगा, तो जिसको हम बोलते हैं ओवरफिटिंग। ठीक है, पुअर एक्यूरेसी, अगर ओवरफिटिंग होगी तो क्या होगा, एक्यूरेसी अनएक्यूरेसी हो जाएगी, मतलब बहुत खराब, बहुत खराब। अगर आपकी, मैं कहता हूँ 100 भी आ जाए ना, तो रियल लाइफ में वो फेल होना ही होना है, अगर ओवरफिटिंग या नॉइजी डेटा है आपका, तो नॉइजी ब्रांचेस है तो। ठीक है, सेकेंड अप्रोच, और टू अवॉइड, व्हाट आर द अप्रोचेस कि हम ओवरफिटिंग को कैसे अवॉइड करें। ट्री प्रूनिंग, प्रूनिंग मतलब होती है छटाई, कटाई।
किस चीज की? ब्रांचेस की, जहां पर जो ब्रांचेस हमें डिसीजंस नहीं देती हैं। हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे मॉडल। हाँ ये देखो आप, अगर मैं इस वाले मॉडल की अप्रोच देखूं, गाइस आप देखना ढंग से, लास्ट स्टेप देखो, मैंने सारे अप्रोच मेरी वही है, सेट बिजनेस गोल, बिजनेस डेटा अंडरस्टैंड, बिजनेस एक्सपर्टाइज, स्टैटिस्टिकल मॉडल, सेम मैं चीज वही दिखा रहा हूं टेक्निक, बट एंड में क्या है? डिसीजन मेकिंग। अगर यहाँ पर देख लिया आपने, अब अगर यहाँ पे मेरी डिसीजन मेकिंग नहीं होगी तो मेरा बेकार है, बेकार है, बेकार है। आप कितनी भी अच्छे डेटा साइंटिस्ट क्यों मत बन जाना, कितने अच्छे भी कोडर ने मत बन जाना, अगर आपको ये डिसीजंस नहीं दे सकते तो यू विल नॉट डू और यू विल नॉट अचीव एनीथिंग, एनीथिंग देयर, एवरीथिंग इज गो इन द वेन। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज कह रहा है, प्रूनिंग, प्रूनिंग और अवॉइड ऑफिटिंग, मतलब आपको कुछ डिसीजन चाहिए उसके थ्रू, तो क्या है? प्री प्रूनिंग, हॉल्ट ट्री कंस्ट्रक्शन अर्ली। आ गई बात, हॉल्ट ट्री कंस्ट्रक्शन अर्ली, डू नॉट स्प्लिटिंग अ नोट्स, मतलब ब्रांचेस मत फैलाओ, जिसको हम नोट्स बोलते हैं एनालिटिक्स में। वुड रिजल्ट इन द गुडनेस मेजरिंग फॉलिंग बिलो अ थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट हो जाती है, अगर उससे नीचे गई तो क्या है हमारा? हमारी वो फॉलिंग हो जो गुडनेस हो जाती है, लेकिन ज्यादा गई तो डिफिकल्ट है हमारे लिए। डिफरेंट टू चूज एन अप्रोप्रिएट थ्रेशोल्ड इज रियली डिफिकल्ट, बट मेरा टूल ऑटोमेटिक कर देगा। पोस्ट प्री प्रूनिंग, पोस्ट प्रूनिंग, रिमूव ब्रांचेस फ्रॉम ए फुली ग्रोन ट्री। आ गई बात, रिमूव ब्रांचेस मतलब टहनियों को रिमूव कर दो। गेट अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेसिवली pruned tree। गाइस जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ एज इट इज वही सेंटेंस लिखे हैं सामने, यू डोंट नीड टू मैनिपुलेट इट, जैसा लिखा है वही आ रहा है सामने, इसी को इतना समझ लो, आई गारंटेड यू आप प्रेडिक्शन और डिसीजन मेकिंग बहुत इजीली कर लोगे। यूज अ सेट ऑफ डेटा डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा टू डिसाइड विच इज द बेस्ट प्रून्ड ट्री, मतलब बेस्ट शेप ट्री, जो आपको डिसीजन दे रहा है वो कैसे आपका बेस्ट ट्री है। ठीक है, जब आपने प्रूनिंग तो ओवरफिटिंग, इफ somebody asks you how will you come from the overfitting, simply pruning, you say the answer pruning. Pruning is the best method to avoid the overfitting, to come from the overfitting। ठीक है गाइस, ये क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे आता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया वही अप्रोच है, बस इस वाले में लास्ट में मैंने डिसीजन मेकिंग ऐड किया है। ठीक है, अब आता है मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन। हमने पढ़ लिया लीनियर रेग्रेशन भी पढ़ लिया, चलो हम मल्टीपल पढ़ लेते हैं। अब मैंने आपको लीनियर रेग्रेशन में इक्वेशन बताई थी y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस एरर्स, रैंडम एरर्स। अब वो क्या होता है ये मैं आपको आगे इस वाले स्लाइड से बताना शुरू करता हूँ। मल्टीपल लीनियर रेग्रेशन, multiple linear regression is an extent of simple linear regression. It is used when we want to predict the value of a variable based on values of two or more variables। आ गई बात यहाँ पे, कैसे two or more variables? If somebody asks you multiple linear regression, then it is the relationship between the quantitative response and the more than two independent variables। Let's see, the variable we want to predict is called an dependent variable or sometime response। मेंशन कर दी मैंने ये वाली बात, डिपेंडेंट के दो नाम हो गए, रेस्पॉन्स वेरिएबल, सॉरी तीन नाम हो गए, रेस्पॉन्स वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द वेरिएबल यूज टू प्रिडिक्ट, वॉइस नहीं आ रही है गाइस, एम आई ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल है। यार मनीष का मैसेज है, सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग, मतलब आप सब लोगों को आ रही है ना? मनीष अपना इंटरनेट चेक करो एक बार आप। मुझे लग रहा है मनीष की साइड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा इंटरनेट का। मैं इसको रिप्लाई चेक करता हूँ, चेक योर इंटरनेट, आपकी कनेक्टिविटी, वैसे भी आज का इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम है, चेक योर इंटरनेट। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब लास्ट पॉइंट में क्या कहता है, द वेरिएबल्स यूज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समटाइम कॉल्ड द प्रिडिक्टर, समटाइम कॉल्ड द एक्सप्लेनेटरी और द रेग्रेशन। अब आप देखो यहाँ पर इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोल दिया? इनपुट वेरिएबल।
तो कल जब हमने मॉडल बनाया था उसमें हमारा वेट था, वेट के बेस पे हम एमपीजी प्रिडिक्ट कर रहे थे। तो वेट मेरा क्या हो गया, वेट का नाम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी और रेग्रेसर वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल। देखिए 5-6 नाम आ चुके हैं यहाँ पर गाइस, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि क्या क्या कहते हैं। डिपेंडेंट को क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स आउटपुट, और डिपेंडेंट इनपुट को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल, प्रिडिक्टर, एक्सप्लेनेटरी एंड रेग्रेसर वेरिएबल। तो गाइस प्लीज कंफ्यूज मत होना कि किस किस वेरिएबल को क्या कहा जाता है, ठीक है। 5-6 नाम अब आपको पता चल गए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। अब आप देखो लीनियर रेग्रेशन में इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस एरर्स, ठीक है। अब मल्टीपल में क्या कहा था, यू हैव टू टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट दैट आर टू वेरिएबल, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीपी, या आप कुछ भी ले लो यार, एक्स बी एक्स इंटू एक्स एक्स ले लो प्लस एरर्स ले लो, मतलब एन नंबर्स ले लो आप, बी एन एक्स एन प्लस एरर्स। तो आप देखो x2 x1 x2 ये क्या इंडिपेंडेंट है, बीटा नॉट क्या हमारा एक फिक्स्ड पैरामीटर है, कांस्टेंट पैरामीटर है, y क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ई क्या रैंडम एरर्स है। इफ समबडी आस्क्स यू द इक्वेशन, आप दोनों इक्वेशन उसको आराम से बता के कंपैरिजन भी बता सकते हो, ठीक है। बोथ इक्वेशन, बोथ एल्गोरिथम, बोथ मशीन लर्निंग या एआई एल्गोरिथम इज ऑलवेज वर्क ऑन द लीस्ट स्क्वायर एरर मेथड, जो नीचे लिखा हुआ है एस्टिमेटेड बाय द। अब आता है व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर। अगेन मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से प्रेजेंट कर दिया, व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर एरर मेथड। तो व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर एरर मेथड, द लीस्ट स्क्वायर criterion state that the sum of the squares of errors or residual is minimum. Residuals is also known in the statistical word by the name of errors. It is always a minimum, minimum, minimum. कहते हैं ना यार, आप जब शूज लेते हो तब आप थोड़ा सा उसके अंदर क्या कि बिल्कुल फिक्स आए पैर पे, ना टाइट हो ना लूज हो, तो वो क्या है, आप एरर्स को तो देख रहे हो, वो जिसे हम टॉलरेंस लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एरर्स को मिनिमाइज कर दिया। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, इन द स्टैटिस्टिकल वर्ड जैसे हम प्रोबेबिलिटी को एनालिटिक्स कहते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, एरर्स को रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर इज मिनिमम, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या होता है, वाई आई माइनस वाई आई हैट, मतलब एक्चुअल माइनस एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, जो हमने प्रिडिक्ट करी है उसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा एरर स्टैंडर्ड बताता है, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर, जो नीचे फॉर्मूला लिखा है एसएस, सम ऑफ स्क्वायर्स भी बोलते हैं या रेसिडुअल एरर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूले हैं कि हमारा जो मॉडल की एक्यूरेसी आती है वो हमको क्या बताती है। अब सपोज करो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मुझे क्या बताएगा, या एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या बताएगा, आर स्क्वायर इज ऑलवेज मेजर द एरर एंड द गुडनेस ऑफ इट। गुडनेस फिट मतलब एक्यूरेसी, कल के मॉडल में 74 पॉइंट समथिंग एक्यूरेसी थी जो मैंने आपको दिखाया था आर स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे आपको द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड वैल्यू और एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ भी ऊपर वाले फॉर्मूले में और नीचे वाले फॉर्मूले में भी वही है, एक्सप्लेन वेरिएशन, टोटल वेरिएशन एंड अनएक्सप्लेन वेरिएशन, ठीक है गाइस। अब आपको पता चल गया है कि ये एरर क्या होते हैं, ऑब्जर्व्ड प्रिडिक्टेड वैल्यूज माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। आर स्क्वायर, देखिए मेजर बात आ गई है, मैंने आपको क्या कहता, गुडनेस ऑफ फिट बताते हैं, ऊपर भी लिखा है मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपको यही बताता है, मतलब एक्यूरेसी, एक्सप्लेन वेरिएशन अपॉन द टोटल वेरिएशन। तो क्या कहता है, आर स्क्वायर इज द पोर्शन ऑफ वेरिएशन variation in the dependent variable which is explained by the independent variable. Note that r square always increases as the variable is added. अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ऐड करूंगा तो मेरा आर स्क्वायर बढ़ेगा, यहाँ पर वो बात कह दी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें वेरिएबल्स कम भी करने हैं, क्योंकि वेरिएबल्स इंक्रीज करके हम कॉस्ट को नहीं बढ़ाना चाहेंगे अपनी, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है, जब आर स्क्वायर बढ़ता है तो हमारा एरर्स भी बढ़ने लगता है, तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है। अब एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या इज मॉडिफाइड वर्जन, मैंने क्या कल आपको दिखाया था, एक की 74.6 थी, एक की 75 थी, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, बट नीचे क्या कहता है, द एडजस्टेड आर स्क्वायर इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ आर स्क्वायर दैट हैज बीन
एडजस्टेड फॉर ए नंबर ऑफ प्रिडिक्टर इन ए मॉडल। एडजस्टेड मतलब फिटेड वेरिएबल्स कौन से हैं जो मेरे मॉडल में फिट हो रहे हैं। ठीक है गाइस, ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे मॉडल्स में कितनी वैल्यूज, कितने वेरिएबल्स फिट हैं। गाइस मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, अभी आपके स्टूडेंट जो 51 से स्टार्ट हुए थे, मुझे आज 6 दिखाई दे रहे हैं। आई गारंटेड यू, अगर आपने मेरे इन टॉपिक्स को पढ़ लिया ना तो नो वन कैन स्टॉप यू। अगर किसी को प्लेसमेंट चाहिए या किसी को स्टार्टअप करना है, जिसका अगर जो भी क्लास में 6 स्टूडेंट मुझे प्रेजेंट है, क्या उन सबका प्लेसमेंट हो गया है? क्या प्लेसमेंट हो गया उन सबका? नहीं सर, अभी नहीं। अभी कंपनी ने अप्रोच नहीं किया होगा लॉकडाउन की वजह से। तो जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आदित्य जो भी हैं आप लोग, मुझे आपका एक ही नाम शो रहा है, आदित्य ने मैसेज किया है। गाइस आप देखना, यही क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा 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 पूछेगा। ठीक है, और आपके जो प्रोजेक्ट्स चलेंगे उसको भी थोड़ा ढंग से कीजिएगा, कहीं से भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा, मत करिएगा, मत करिएगा। क्योंकि अगर आपको उसके आंसर्स, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज, उसकी डीप नॉलेज नहीं होगी तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो सामने एक्सपर्टाइज्ड होता है वो किस लेवल का होता है वो हम भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जब भी मैं इंटरव्यू लेने बैठता हूँ तो पहले मैं उसके सीवी में ये देखता हूँ उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसका प्रोजेक्ट क्या है। मैं उसी के बेस पे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। मैं ऐसे नहीं पूछता तुमने क्या पढ़ा इंजीनियरिंग में, व्हाट यू आर लर्निंग, व्हाट दिस टॉपिक इंडिकेट्स। नहीं, मुझे नहीं पूछना, मुझे ये पूछना उसके प्रैक्टिकल वर्क आप सब लोगों ने व्हाट यू हैड परफॉर्म इन योर कॉलेज लाइफ। ठीक है, तो प्लीज इन सब पे फोकस मत करना, फोकस इसी टॉपिक्स पे करना इफ यू रियली वांट टू अ स्टार्टअप और सम बिगर ऑर्गेनाइजेशन विद अ गुड पैकेज। ठीक है, इतना तो है, इतना मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो आराम से, कंपनी के लिए भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो, शायद वो आपकी कंपनी खुद क्यों ना हो। अभी बहुत ओपनिंग चल रही है, बहुत ज्यादा ओपनिंग चल रही है, फ्रेशर्स के लिए भी बहुत चल रही है। इफ यू आर कनेक्टेड विद सम सोशल पर्सन और सम कॉर्पोरेट गाइड्स। ठीक है गाइस, अब आती है सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम, मल्टी कोलिनियरिटी। क्या कभी किसी ने नाम सुना है ये मल्टी कोलिनियरिटी का? यार मैं आपसे कहता हूँ रेस्पॉन्ड करो, बट कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता है। आदित्य सर प्लीज गेट दिस पीडीएफ। ठीक है, मुझे आप मेल आईडी शेयर कर देना एक, मैं आप लोगों को एक को शेयर कर दूंगा, आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये सबको दे दूंगा। और मैं एक पाइथन की फाइल भी तैयार कर लूंगा साइड बाय साइड, मैं आप लोगों को वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, बट प्लीज मुझे बस ये रेस्पॉन्ड कर दो अभी जरा कि किसने मल्टी कोलिनियरिटी सुना है, क्योंकि जो लोग क्लास में प्रेजेंट है उनमें से एक दो ही लोग मुझे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी लोग मुझे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेटा के साथ आगे चल के। क्या होता है मल्टी कोलिनियरिटी? नो, ओके ठीक है, दो के तो रेस्पॉन्ड आ ही गए, बाकी 3 रह गए। चलो कोई नहीं, 2 रह गए, 4 स्टूडेंट्स। क्या बात है यार, स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं, लगता है मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ। गाइस मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आपको? मुझे नहीं लग रहा समझ में आ रहा है आप लोगों की। स्टूडेंट्स और कम हो गए, तो 7-8 से स्टार्ट हुए थे, 4 आ गए। एनीवेज यार मैं क्या कह सकता हूँ, अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं तो मेरे से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स लेके चल रहा हूँ। एनीवेज मैं और अच्छा कोशिश करने की कोशिश करता हूँ फ्रॉम माय साइड, पुट द बेस्ट एफर्ट्स अगेन। ठीक है, मल्टी कोलिनियरिटी गाइस ये बिगेस्ट प्रॉब्लम रहती है डेटा के साथ आगे चल के एंड तक। क्यों रहती है? अब सपोज करो क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, ABCD, अगर सबको मैं एक ही काम पे लगा दूं या एक ही काम पे लगा दूं तो क्या मुझे यूजफुल रिजल्ट मिलेगा? क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? क्या मुझे ग्रेड अच्छी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी मिलेगी? मिलेगी, बट वो आपस में कोलाइड करेंगे क्योंकि सबके पास एक जैसी नॉलेज है, तो सब अपनी बुद्धि लगाएंगे, सबके पास एक जैसी इंफॉर्मेशन है। तो वेरिएबल्स के साथ भी यही होता है। अगर वेरिएबल्स एक जैसा बिहेवियर कर रहे हैं और मैं उनको मॉडल मतलब किसी भी मॉडल टाइप ऑफ मॉडलिंग में इंक्लूड कर रहा हूँ, तो क्या होगा पता है? मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हो सकता है मेरे एरर्स भी बढ़ जाए। तो इसलिए उनको परफॉर्म करने से पहले मैं ये देखूंगा कहीं ये क्लैश तो नहीं हो रहे हैं, क्या ये एक जैसी इंफॉर्मेशन तो कैरी नहीं कर रहे हैं, कहीं इनका रिलेशनशिप स्ट्रांग तो नहीं है आपस में। तो उससे क्या होगा, उससे मेरा ओवरऑल मॉडल सफर कर जाएगा।
जैसे कि पढ़ते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉब्लम इन प्रिडिक्टिव मॉडलिंग इफ देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप। आगे बात ना, अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मीन्स बिहेवियर सेम है, इंफॉर्मेशन सेम है, तो मैं उनको साथ में लेके नहीं चलूंगा। मैं कहूंगा प्रतीक तू वहां जा, मनीष तू वहां जा, आदित्य तू वहां जा, शुभम तू वहां जा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो सब लोग अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे, अपने स्किल सेट्स को शो करेंगे। तो वो मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होगा। मल्टी कोलिनियरिटी वो होगा अगर मैं चारों को एक ही जगह डाल दूंगा, सबका नॉलेज ऑफ स्किल सेट एक जैसा ही है। क्लियर हुआ? ये होता है मल्टी। तो मैं क्या करूंगा, उनको साथ लेके कभी नहीं चलूंगा, उनको अलग अलग बांट दूंगा। कैसे? पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल आर हाईली अनस्टेबल एज स्टैंडर्ड एरर। आप देखो बार बार एरर्स की आ रही है गाइस। बिना एरर्स कम हो गए समझो आपने सक्सेस पा ली मॉडल में अपने, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। अगर आपने एरर्स पे कंट्रोल नहीं किया तो आपका 100% एक्यूरेसी क्यों ना आ जाए, वो भी रियल लाइफ में फेल हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इसलिए मुझे अपने एरर्स पे बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा, सो दैट मैं उन एरर्स को लेके अपना ध्यान रख सकूं। अपने मॉडल पे एरर्स की मिनिमाइजेशन करनी होगी, तो ये सारी टेक्निक मुझे अप्लाई करनी होगी। द मॉडल में लुक ideal for a given sample but it failed to predict the accuracy for out of sample data. Guys, again accuracy, predict to accurately तो जब भी प्रिडिक्ट करेगा जब आपके एरर्स कम होंगे। तो इसलिए आपको हमेशा अपने माइंड में ये कंसेप्ट बैठा लेना है कि मुझे एरर्स पे फोकस करना है, एक्यूरेसी पे नहीं। अगर एरर्स कम हो गए तो मैं अपना कर लूंगा, अदरवाइज मेरे लिए क्या होगा, एक चैलेंजेबल हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? प्लीज एक बार यस लिख के टाइप कर दो या नो लिख के टाइप कर दो। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, आगे नेक्स्ट एल्गोरिथम आने वाली है। ये हमने 2-3 एल्गोरिथम्स कवर कर लिए हैं, ट्री रेग्रेशंस के 2-3 टाइप्स, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग 4-5, और हमारा मल्टी इक्वलिंग में 4-5 कवर कर लिया। तो प्लीज एक बार लिख दो यस यस। ठीक है, अभी 2 ने ही लिखा है, 2 रह गए, चलो कोई नहीं, उनको सोचने दो। ठीक है, तो इसलिए मल्टी कोलिनियरिटी मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स बिहेवियर, कोलिनियरिटी मतलब रिलेशनशिप, एक जैसी इंफॉर्मेशन। अब हाँ, ये रह गया, सॉरी, डिटेक्ट। अब इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं मल्टी कोलिनियरिटी को? गाइस, एक एल्गोरिथम आएगी आपके सामने, वेरिएंस इंक्लिनेशन फैक्टर। ये कुछ नहीं है, ये हमें, जिसको हम बोलते हैं VIF, ये हमें एक वैल्यू बता देगी। हर बुक में, स्टैंडर्ड बुक में इसकी जो रेंज है वो 0 to 5 है या 5 to 10 है। अगर हमारी वैल्यू 5 से ऊपर क्रॉस हो रही है या 10 से वेरिएबल की वैल्यू जा रही है ओवरऑल, तो हम समझ जाएंगे इनका बिहेवियर सेम है, तो हम इनको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, हम इनको ड्रॉप कर देंगे, और इस ड्रॉप के बाद हमें हमारी मल्टी कोलिनियरिटी दूर हो जाएगी। अगर 1-2 लोगों के, अगर सपोज करो आउट ऑफ 4 के 2 में से 2 के 85% से ऊपर है, मतलब 0.85 प्रोबेबिलिटी, 0.85 GPA, जो भी आप लोगों के होता है कॉलेज में, मुझे नहीं पता इतना। तो जब वो होता है तो हम क्या कहते हैं, ये दोनों एक्सीलेंट स्टूडेंट है। इसका मतलब उन दोनों का जो इंफॉर्मेशन कैरी का जो फंडा है वो एक जैसा ही है, तो मैं उनमें से एक को पिक करूंगा और फिर दूसरे को पिक किसी और चीज के लिए करूंगा। तो ये मल्टी कोलिनियरिटी होती है। तो हम जो पिक करते हैं, देखो कोरिलेशन से, वाया कोरिलेशन अमंग इंडिपेंडेंट, ये मैं एक काम, मैं आज आपको एक प्रैक्टिकली शो कर देता हूँ 5 मिनट में, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोरिलेशन से पिक कर सकता हूँ, कोरिलेशन वैल्यू से, या अनोवा टेबल से, या VIF से, वेरिएंस इंक्लिनेशन फैक्टर से। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको और ले जाएगा। क्लेम, व्हीकल क्लेम का ले लेता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, टू मॉडल क्लेम अमाउंट, कि क्लेम अमाउंट कितना हो रहा है। ठीक है, अब आप ये एक बार इसको रीड कर लो फटाफट, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखो मेरा पहला वेरिएबल, एक बार नीचे डेटा देख लो पहले एक बार। व्हीकल एज, व्हीकल कितने साल हो गए, CC मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है CC का मतलब, जो व्हीकल्स का होता है। लेंथ हो गई, वेट हो गया, और क्लेम अमाउंट हो गया गाइस। ठीक है, आपने ये वेरिएबल्स देख लिए। अब मैं इनमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाने जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ भी दे रखा है, सारी चीजें। सैंपल साइज 1000, क्या हुआ, बीट ऑन मतलब इंटरसेप्ट,
स्लोप आ गया, वैक्यूल एज पहला क्या है मेरा, नीचे देखो वैक्यूल एज आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, सीसी B2 के साथ, B3 के साथ लेंथ आ गया, और B4 के साथ मेरा वेट आ गया, और क्लेम अमाउंट जो मेरा ये है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल या रेस्पॉन्स वेरिएबल, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर प्रिडिक्शन करी, अब आप ये देखो जो H0 इक्वल्स टू 0 लिख रहा है, ये क्या है, नल हाइपोथेसिस, और H1 लिख रहा है, ये क्या हो गया मेरा ऑल्टरनेटिव या रिसर्च, ये मैं रिसर्च के थ्रू दूंगा अपनी पी वैल्यू के थ्रू। देखो गाइस यहाँ पर पी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ये मेरी वैल्यूज आ गई, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या, -54, 755, वैक्यूल की। अब मैं देखो यही वैल्यू इसमें डालूंगा मॉडल में, ये मैंने दिखाया नहीं क्या यार, रह गया मेरे से। तो अब आप ये वाली जो वैल्यूज आएंगे ना, ठीक है, आप देख लो -4675 इंटरसेप्ट y1, वो वैल्यू अब यहाँ पे डाल दो, B0 पे, B1 पे, मतलब B1 पे वैक्यूल एज पे नहीं, B2 पे, B3 पे, B4 पे, और वैक्यूल एज पे 4 डाल दिया यहाँ पर, TC में आपने 1459 डाल दिया, मतलब एक ही रो के डालनी है, 4250 लेंथ पे डाल दिया, वेट पे आपने ये डाल दिया, एरर्स को हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास ये आ गया, पूरा मॉडल की प्रिडिक्शन आ जाएगी कि इसका अमाउंट कितना है। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो एक बार, अपने बाय हैंड कर सकते हो, बीटा नॉट पे डाल दो अपनी आप वैल्यू यहाँ पर -454765, ठीक है। B1 पे आप डाल दो, वैक्यूल एज में 4 डाल दो, B1 पे कौन सी वैल्यू हमारी है, B1 पे हमारी -6637 आ रही है, वो डाल दो, फिर CC में 15.4 इंटू 1495 में मल्टीप्लाई कर दो लेंथ में, तो आपको देखो पूरा वैल्यू आ जाएगी, क्लेम अमाउंट आ जाएगा आपके सामने निकल के। ये होता है हमारी मॉडलिंग प्रेडिक्शन की, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो इस प्रेडिक्शन में वैल्यू क्या मिलेगी, फॉर एवरी यूनिट, गाइस समझना इस क्वेश्चन को, फॉर एवरी यूनिट इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द डिपेंडेंट वेरिएबल y changes by the corresponding parameter estimate keeping all the values, all the variable constant। जब मैं किसी को वो करूंगा तो क्या होगा, अब मेरा जो वैल्यू आई थी, किसकी आई थी, 66 वाली, वैक्यूल एज की, -6637, ठीक है। तो क्या कहता है, अब इसको रीड करना, फ्रॉम द पैरामीटर एस्टिमेट टेबल वी ऑब्जर्व दैट द पैरामीटर एस्टिमेटेड वैक्यूल इज इतना है, ठीक है, 6600 समथिंग, वी कैन इन्फर दैट द 1 year इंक्रीज इन वैक्यूल एज द क्लेम अमाउंट शुड बी डिक्रीज बाय। आप देखते हो जब भी आपकी वैक्यूल पुराना होता है, उसकी एज बढ़ती है, तो क्लेम अमाउंट कम होता रहता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वेरिएबल जब हम 1 साल बढ़ाएंगे वैक्यूल का, बढ़ेगा, तो क्लेम अमाउंट कितना डिक्रीज हो जाएगा, 6637, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर डिक्रीमेंट इंडिकेट कर रहा है, ठीक है गाइस। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई? अगर हो गई तो प्लीज एक बार टाइप कर दो, मैं समझ जाऊंगा आपको ये आउटपुट क्लियर हो गया थोड़ा सा। नेगेटिव साइन डिक्रीमेंट, पॉजिटिव साइन इंक्रीमेंट। यस, ये तो यस पहले का है शायद, अभी का यस है क्या ये? गाइस ये क्लियर हो गया ये बात आपको याला? यस यस, ठीक है। अभी एक का ही आया, आदित्य का ही आया है। यस, ठीक है, 3 का आ गया, बाकी 2 लोग तो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, कौन है पता नहीं, ठीक है यार, देयर विश, ठीक है। अब आ गई आपकी सपोर्ट वेक्टर मशीन। गाइस बड़ी अच्छी एल्गोरिथम है ये, बहुत 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 अच्छी और बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। आपको पता है मैं वही एल्गोरिथम दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और आपके इंटरव्यू क्रैक के लिए आपको एक तरीके से ऐसा बना रही है कि आप कुछ भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब सपोर्ट वेक्टर मशीन इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल which associates learning algorithm that analyze data and recognize pattern, use classification as well as the regression। ये algorithm regression भी use कर सकती है और classification भी। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, relatively new learning में generally used for the classification, but यहाँ पर मैं regression वर्ड लिखना भूल गया हूँ। Although the first paper dated way back to early 1960s, only in 1925 at powerful universal mainstream machine learning paradigm, ठीक है। द मेन आइडिया ऑफ दिस हाइपर प्लेन, हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं इस तरीके से क्लास में कि हम उसको परफॉर्म कर सके। इवनली यू कांट बिलीव इट, सपोर्ट वेक्टर मशीन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एग्जांपल ऑफ ए पॉइंट्स इन स्पेस। वो मैं दिखाऊंगा कैसे आगे। बेसिक आइडिया ऑफ इज टू फाइंड आउट द हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन इज नथिंग, आगे बताता हूँ चलो।
थोड़ा आप फिर से कंफ्यूज भी नहीं हो गए हाइपरप्लेन क्या होता है। ठीक है, हाइपरप्लेन एक लाइन होती है जो डिवाइड करती है दो क्लासेस को, ठीक है, परफेक्टली इनटू अ क्लासेस, ठीक है, लीनियरली सेपरेबल, ऑल दीज थिंग्स। क्या कहता है, अप्रोच टू क्लासेस प्रॉब्लम डायरेक्टली वे ऑन द, हमारा मेन सपोर्ट वेक्टर मशीन का गोल क्या होता है, टू फाइंड आउट और टू डिजाइन द हाइपरप्लेन दैट क्लासीफाई ऑल द वेक्टर्स इन द क्लासेस। अब यहाँ पर जो वेक्टर नेम इंडिकेट कर रहा है, आपको पता है वेक्टर्स मतलब क्या होता है, डायरेक्शंस, और वो वाला वेक्टर नहीं स्केलर और वेक्टर which tell us the time as well as the direction, नहीं, ये हमें वेक्टर डेटा पॉइंट्स को कह रहा है। वो डेटा पॉइंट्स निकालो जो हमारी लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वी ट्राई एंड फाइंड द प्लेन दैट सेपरेट द क्लासेस। आगे प्लेन कह रहा है या हाइपर प्लेन, नीचे हाइपर प्लेन दिखाई दे रहा होगा, उस वाली स्लाइड पे आ रहा हूं। वी सॉफ्टन दैट मार्जिन, इसको हम कहते हैं एक तरीके से सॉफ्ट मार्जिन भी कहते हैं, ठीक है। अब कैसे, अब हाइपर प्लेन में आपको दिखा देता हूँ, सॉरी मुझे काफी नीचे दिखाया है मैंने, ये देखो ये हाइपर प्लेन है मेरी, ठीक है। अब ये हाइपर प्लेन क्या कर रहा है, ये प्रॉपरली डिवाइड कर रही है दो क्लासेस को। यहाँ पर देखो, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ फिर से, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है, आपको पता है देयर आर डिफरेंट वेज, इसको ड्रॉ करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, लेकिन हम वही तरीका अपनाएंगे जिससे हमारा क्लासेस ज्यादा डिस्टेंस पे हो, मर्ज ना हो रही हो या कोइंसाइड या मिक्स ना हो रही हो, ठीक है। अब 2 डायमेंशंस में हमारी इक्वेशन क्या आती है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर जो डब्ल्यू है वो एक वेक्टर है सॉरी, और जो एक्स है वो मेरा वेट है, वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है। और जो यहाँ पर मेरा बी शो कर रहा है, बी मेरा क्या है, यहाँ पर एक बायस है, एक सिंगल नंबर है, विच इज नोन हैज इंटरसेप्ट वैल्यू, ठीक है, ये मेरा वो है। अब हाइपर प्लेन देखो, अब हाइपर प्लेन इन अ पी डायमेंशन इन ए फ्लैट एफिलिन सब स्पेस ऑफ डायमेंशन p-1, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर आप इक्वेशन देखो, वही लीनियर रिग्रेशन वाली इक्वेशन को कनेक्ट करो यहाँ पर, अब बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस and so on bn2 xn equals to 0. This is the line hyperline equation for the 2 dimension. अब यहाँ पर दो क्लासेस होंगी, b-1 और b+1 वाली क्लासेस होंगी, ठीक है। ये वेक्टर्स हो गए b जो मैंने आपको अभी बताया था, और वो मेरे वेट हो जाएंगे x वाले, ठीक है गाइस। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि यहाँ पर मेरा काम है टू मिनिमाइज देयर वेक्टर वेट इन एन, मैं यहाँ पर वेक्टर्स के वेट को मिनिमाइज करूंगा। अब आप देखना यहाँ पर बाइनरी क्लासेस, अभी हम दो क्लासेस की बात कर रहे हैं, मल्टीपल क्लासेस की नहीं आ रहे हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन कैन बी व्यूड एज ए टास्क ऑफ सेपरेटेड क्लासेस इन ए फीचर स्पेस WTX प्लस बी। मतलब अब मेरी मर्जी है, अब मैं किसको ग्रेटर देन 0 मानूं, किसको लेस देन 0 मानूं। मानने दो क्लास है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो लेस देन 0 नेगेटिव मान लो, ग्रेटर देन पॉजिटिव मान लो। तो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द लाइन हैंडलिंग। इसकी सबसे ज्यादा पता है बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, they have the volume of the size of data could be trained as well as the tested, it can handle it very easily. In this we have the optimal, जो हाइपर प्लेन है इसको मैं बेस्ट लाइन को हाइपर प्लेन ऑप्टिमल हाइपर प्लेन भी कह सकता हूं, ठीक है। अब आप देखो, अब मैं कैसी कैसी लाइनें ड्रॉ, मैं कितनी सारी लाइनें हाइपर प्लेन को ऑप्टिमल मार्जिन को भी बोल सकता हूं, इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन मैं वही बेस्ट लाइन को चूज करूंगा। वो मैं चूज नहीं करूंगा यार, वो मेरा एरर से चूज करेगा जहां पर कम एरर हो रहा होगा। ये तो मैं आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन वो अपने आप चूज कर लेगा, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर सारे काम मुझे मैनुअली करने, तो हम जैसे डेटा साइंटिस्ट की स्किल सेट्स की बंदों की जरूरत नहीं है। मैनुअली काम करने वाले मोर देन 90% इंडिया में हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक ही मेरा एप्लीकेशन मुझे निकाल के दे देगा कि ये बेस्ट फिटेड लाइन है, लेकिन ये मैंने आपको शो करी है। देख रहे हो आप दो क्लासेस कैसे सेपरेट हो रही है। अब नीचे वाली इक्वेशन देखो, वो इक्वेशन आ रही है फॉर द पॉइंट ऑफ द वन साइड एंड ग्रेटर देन द 0 इज फॉर द अदर साइड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ दीज, अब जो डिस्टेंस आता है, जो टोटल डिस्टेंस आएगा इसका, वो क्या होगा, वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जो भी होगा वो होगा मिनिमम डिस्टेंस 1/2, मतलब टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा मेरा 2/W,
ऊपर पीछे देखो आप लिखा हुआ है हियर डबल मॉडल इज लेंथ ऑफ ए वेक्टर विच गिवन बाय द स्क्वायर सम ऑफ द w होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2 अपॉन मॉडलिंग में होल स्क्वायर 2 पावर 2 स्क्वायर जो नीचे है। तो ये मेरा टोटल डिस्टेंस ऑफ बोथ साइड का हाइपर प्लेन का डिस्टेंस होगा। अब आप ये देख सकते हैं जो फिगर बन रही है, अब आप देख रहे हो ये लाइन को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर 2 पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट वेक्टर्स मशीन्स हो गई। मतलब वो डेटा पॉइंट जो मेरी हाइपर प्लेन को सपोर्ट कर रहे हैं ये मेरा सपोर्ट वेक्टर्स मशीन हो गए। ठीक है, सपोर्ट पॉइंट हो गए, एक तरफ नेगेटिव हाइपर प्लेन, एक तरफ पॉजिटिव हाइपर प्लेन, और बीच वाली लाइन को मैं बोलूंगा मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर या मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन। नेगेटिव हाइपर प्लेन, पॉजिटिव हाइपर प्लेन, सेंटर को बोलूंगा मैक्सिमम हाइपर प्लेन और लार्ज हाइपर प्लेन। ये नीचे आप ये पढ़ सकते हो, केस क्लोजेस्ट टू द हाइपर प्लेन, जो हाइपर प्लेन के क्लोजेस्ट है वो सपोर्ट वेक्टर्स कहलाता है, यहाँ भी मेंशन किया हुआ है। सर्किल, देखो यहाँ पर ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, सर्किल केसेस आर सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है। फिर से मैं वो चीज लाया हूं यहाँ पर दूसरी फिगर के फॉर्मेट में, all are separating hyperplanes which one head makes the biggest gap। जो ज्यादा गैप क्रिएट करेगी वो ही बेस्ट मार्जिन होगी, वो ही बेस्ट मार्जिन होगी। ठीक है गाइस, प्लीज ये नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर, ऊपर ही मैंने हेडिंग डाल दी है इसलिए, जिससे आप उस चीज को समझ पाओ। मुझे अपनी कोई भी मेल आईडी शेयर कर देना, इस पे शेयर करोगे तो ये मैं एक्सेस नहीं कर सकता, ये हमारे सर ही एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे पता नहीं चलेगी मेल आईडी, या कोई मेरा नंबर नोट करके आप उस पर मुझे डाल देना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन, और ये हमारी लाइन हो जाएगी। अच्छा गाइज, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर कर दो, मैंने Yes, काफी देर से पूछा नहीं। ठीक है, Yes, sir. ओके। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस एंड में लूंगा एक बार, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। देखो फिर मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफाई, इसलिए मैंने हर चीज की 2-2 स्लाइड्स डाली, इससे आपको अलग अलग फॉर्मेट में आपको समझ में आता है। ऑब्जेक्टिव इज नाउ टू, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ये मैक्सिमम मार्जिन को, जो डिस्टेंस है, जो सेपरेटेबल डिस्टेंस है, उसको ही लें, बाकी को ना लें। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, और हाँ दोनों साइड डिस्टेंस इक्वल होगा, अनमैच नहीं होना चाहिए। अगर अनमैच होगा तो वो आपका मॉडल फेल है, भूल जाएगा कि आपका मॉडल सक्सेस जा रहा है, भले 100% एक्यूरेसी आ रही हो। अगर मार्जिन का डिस्टेंस बोथ क्लासेस से सेम नहीं है तो वो मॉडल आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लीनियर एरे सपोर्ट वेक्टर मशीन की मैथमेटिक्स है। अब मैं आपको कोई समझा देता हूँ एक बार कैसे है ये। अब आप देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, रो हमारा मार्जिन का, ठीक है, तो डब्ल्यू टी ट्रांसफॉर्मेशन वेट आ गया, प्लस बी हमारा इंटरसेप्ट आ गया, लेस देन रो माइनस पी आ गया। ठीक है, मार्जिन तो हमारा क्या हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गई, वो नीचे वाली पॉजिटिव साइड हो गई, तो टोटल इक्वेशन हमारी क्या हो गई, वाई आई डब्ल्यू टी एक्स आई प्लस बी ग्रेटर देन द रो बाई 2। ठीक है, रो हमारा यहाँ मार्जिन का डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। फॉर ईच एंड एवरी सपोर्ट एक्स एट द अबव इनइक्वालिटी इज एन इक्वालिटी आफ्टर रीस्केलिंग w, रीस्केलिंग एंड b बाय p नॉट बाय 2 इज द इक्वालिटी। ये हमारा टोटल डिस्टेंस है जो मैं आपको बता रहा था, 2 बाय w। जितना मिनिमम डिस्टेंस होगा इसके आगे आप मिनिमम भी लिख सकते हैं, तो उतना हमारा एरर्स कम होगा। ठीक है, ये इसकी एक मैथमेटिक्स है बेसिक। सेम चीज देखिए, 2 बाई डब्ल्यू आ गया, ये हमारा मैक्सिमाइज हो गया, मतलब डिस्टेंस मैक्सिमाइज हो गया। रो क्या है, हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डब्ल्यू हमारा वेट है, वेक्टर है, और एन हमारा डब्ल्यू ऑफ वेक्टर है हमारा। ठीक है, और एक्स हमारा वो हो गया, हमारा इंटरसेप्ट हो गया, और बी हमारा एक नंबर्स हो गया विच इज नोन एज द बाई। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास आता है नॉन लीनियर। अब सपोज करो हमारे पास डेटा लीनियर ही नहीं है इस वाले फॉर्मेट में, फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, द ओरिजिनल फीचर स्पेस आर ऑलवेज बी मैप टू सम हायर डायमेंशनल फीचर्स। ठीक है, जब इसको हम डायमेंशनल फीचर्स करेंगे तो हमारा डेटा ये ट्रांसफॉर्म होगा, जो हमारा और शेप्स बनाएगा। कौन कौन सी, रेडियल बनाएगा, क्यूबिक बनाएगा। हियर वी यूज द बायस एक्सपेंशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो गया जिसमें हमने डेटा को ट्रांसफॉर्म किया। ये भी हमारा क्यूबिक की है, ये हमारी इक्वेशन है क्यूबिक की, आप जानते हो।
वो फॉर्मूलाज होते थे, स्क्वायर वाली इक्वेशन सुनाओ, क्यूबिक वाली सुनाओ, तो कुछ ऐसा ही है ये भी। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इक्वेशन भी वैसी ही होगी। बीटा नॉट स्क्वायर बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 पर बीटा 3 x1 का होल स्क्वायर बीटा 4 x2 का होल स्क्वायर बीटा 5 x1 इंटू x2, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इस पे वर्क करता है ये रेडियल कर्नल्स हो गए। ठीक है गाइस, और अब आप देखो यहाँ पर हमारा रेडियल शेप आ रहा है, इसलिए हम इसे रेडियल कर्नल्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आती है कि शेप के लिए अभी तक शेप केवल हमें डिफाइन करनी पड़ती है। अगर आप शेप इक्वल्स टू लिख दोगे रेडियल, तो वो रेडियल की फॉर्म में पकड़ लेगा। आपको उसके लिए कोई अलग से इतना हार्ड एंड फास्ट रूल सिंटैक्स नहीं डालना है, जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इस कंसेप्ट के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, आपका यहाँ पर सॉल्व होता है, सॉर्ट आउट होता है। मैं आपको इसके अंदर एक चीज और दिखा देता हूँ, जो मैं कोरिलेशंस की जो मैं बात कर रहा था, वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। फिर आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूंगा एक बार। ये मैं आपको रिलेशनशिप दिखाना चाह रहा हूँ वेरिएबल्स का। है ना, मेरी फाइल्स काफ़ी सारा अपलोड है, इसलिए थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन का भी फर्क पड़ता है थोड़ा सा इस पे। मैं भी वही आपको तभी रन कर जाएगा ये अभी। तब तक मैं दूसरी फिगर के लिए सिंटैक्स डालता हूँ उसमें।
ये देखिए गाइस, ये वही वैल्यू कोरिलेशन की थोड़ा सा छोटी हो गई, मुझे इसका शायद फिगर साइज भी देना पड़ेगा। इसका यहाँ पर मैं अगर फिगर साइज मेंशन कर दूंगा तो शायद ये थोड़ा सा और एडजस्ट हो जाए। ओके, अच्छा इसमें पेयर्स नहीं है। ओके ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं लंग ले लेता हूँ। इसमें मैं जेंडर ले लेता हूँ या फिर उसके कलर ले लेता हूँ। फिर क्या ले लूँ उसके अंदर? स्मोक लूँ क्या? स्मोक है क्या? स्मोक, ओके ओके। फिर क्या लूँ मैं इसके अंदर? क्यों भाई, क्यों दिखा रहा है इनवैलिड टेक्स्ट? ये चीज तो समझ में नहीं आ रही। एक मिनट रखो जरा। ये जो मेरे ऊपर के प्लॉट हैं, ये कोरिलेशंस वैल्यू ही बता रहे हैं, तो इसलिए इन वैल्यूज को लेके कंफ्यूज मत हुइएगा। अगर आप कोरिलेशन वैल्यू चेक करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। मगर ये देखिए आप, एज हाइट, एक मिनट यार, ये लंग का मुझे क्यों दिखा रहा है? लंग डॉट शेप में ऐसा क्यों दिखा रहा है ये मुझे? 6 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अच्छा ओके ओके, कैटेगरीज है, मुझे उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। लंग डॉट कोरिलेशन वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब अगर मैं एसएनएस डॉट हीट मैप करता हूँ डॉट कॉर comma and not equals to true। चाहे मुझे इसका फिगर साइज डालूंगा तो मुझे सारी चीजें शो हो जाएंगी, ठीक है। अब आप ऊपर की वैल्यू और फिगर की वैल्यू कंपैरिजन करो। लंग लंग 1 आ गया है यहाँ पर, लंग एज 0.81, ठीक है। और लंग और हाइट 0.91 आ रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 0.91 है। 0.82 आ गया यहाँ पर, इसको राउंड करके डाल लें फिगर को, ठीक है। 1.84 मतलब 0.83 0.84, बात एक ही है। 0.91
तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। सारी वैल्यू हीट मैप भी मुझे वही दिखा रहा है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे कोई चीज सब कुछ अपने आप कैसे करना है, तो क्या करूंगा, ठीक है, ठीक है। ये मेरा मोटिव था आपको दिखाने का। कल आपको एक मॉडल वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वाला समझा दूंगा, उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे ऐड करते हैं, ठीक है गाइस। दैट सॉल्व फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। 4 रह गए करते 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 करते। यस गाइस, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास। युवराज अभी है क्लास में क्या? युवराज आर यू प्रेजेंट? तभी आंसर दूंगा यार। यस युवराज सर। भाई अपना क्वेश्चन सबके सामने रिपीट करो एक बार। युवराज प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन भाई। Data is in undistributed form, then how can we separate by this hyperplane? देखिए, अगर हमारा डेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वर्ड क्या समझते हैं आप? थोड़ा सा मुझे ये और बताओ। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड? Throughout same नहीं होगा। सॉरी, हेलो, Throughout same नहीं होगा। Throughout चारों थ्रू आउट सेम नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? थ्रू सेम नहीं होगा। मैं यही कह रहा हूँ भाई, मैं यही कह रहा हूँ। थ्रू आउट सेम नहीं करेंगे तो हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे मिनिमम मैक्सिमाइजेशन के थ्रू। हम उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आएंगे। हम मीन नहीं लेंगे, हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे मिनिमम मैक्सिमाइजेशन, जिसको हम बाय द नेम ऑफ मिनिमम मैक्सिमाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं जिसको। क्लियर हुआ? हेलो युवराज, इसको हम नॉर्मलाइजेशन, यार आपकी तो वॉइस बहुत ज्यादा कट रही आ रही, क्लियर नहीं आ रही, उसका इंटरनेट के इश्यू रहे हो, लेकिन मैं आपको चिंता हूं, इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे या मीन मैक्सिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओके सर। डेटा, इसको बोलते हैं, देखो ये 3 स्टेप, थोड़ा सा एक सिमिलरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा नॉर्मलाइजेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और मिनिमम मैक्सिमाइजेशन या स्केलिंग, ये तीनों काम एक जैसा करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कब किस कंडीशन में यूज करते हो, ओके ठीक है। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी का और कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज हम यही क्लास ओवर करते हैं। वी ऑलरेडी एक्सीड आवर टाइम, 1 घंटा 30 मिनट हो चुका है, और अभी आपका और भी सेशन है शायद, और आपकी क्लास भी चल रही है। थैंक यू यार, आप लोग गाइस बहुत अटेंटिवली क्लास सेशन अटेंड कर रहे हो। अगर आप रेगुलर रहे तो मैं आपके सीवीज अपनी साइट से कंपनी में फॉरवर्ड करा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू आदित्य, आकाश, राहुल एंड युवराज। थैंक यू सो मच टू लिसन मी वेरी अटेंटिवली। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं। ओके बाय।